we are going to talk about individual counseling. And individual counseling is a topic which we come across by different means and in different situations and in different therapeutic situations where we find that a person is struggling through something. It could be either some health issue, it could be something related to family discord, it could be something related to your career subjective success, or anything which involves problem, stress, and something which is bothering you. So, individual counseling is something which can be done in any phase of life from beginning till end. लाइक एक छोटे बच्चे की भी इंडिविजुअल काउंसलिंग हो सकती है, एक टीनेजर की हो सकती है, अडोलेसेंस की हो सकती है. इट कुड बी डन टू एन अडल्ट एंड एन ओल्ड एज पर्सन. सो this is a process which keep going the whole life. So individual counseling is one-to-one discussion between a client and a counselor. It makes sense that when we talk about individual counseling, the whole purpose would be to focus on one individual, and we have to see that how we can provide help and support to that individual. The two form of an alliance, relationship or bond that enable trust and personal growth. So the core purpose, the whole focus is that we would be able to provide solutions of the problems which a client is being facing, and in return to those suggestions, those counseling techniques, personal growth would be done. So it's the basically हमारा aim ये होता है कि हम कोई भी issue हो, whether it could be addiction, whether it could be mental health problems, or maybe anything which is causing stress and anxiety. So हमारा इशू ये है कि क्लाइंट जो है उसको हमने जो उससे एसोसिएटेड स्ट्रेस, एग्जाइटी या डिप्रेशन है उससे हमने बाहर निकालना है. अब आप ये देखो कि इन आवर डेली लाइफ, हमारी जो रूटीन की ज़िंदगी है, इसमें हम हर वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार होते रहते हैं, बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो हम फेस करते हैं, और हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें बहुत सारे हमारे गेन्स और लॉसेस होते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हमें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमसे सेपरेट हो जाती हैं, and there are certain relationship issues, family conflict, violence, abuse, workplace bullying, sexual harassment and so many other things. फिर इंडिविजुअल ग्रीफ भी होते हैं बहुत सारे, लॉस ऑफ समथिंग, कोई किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया और किसी का अबॉर्शन हो गया, थिंग्स लाइक दैट. सो इंडिविजुअल काउंसलिंग कैन असिस्ट इन कोपिंग विद दो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर में हो, यूनिवर्सिटी में हो, फ्रेंड्स के सर्कल में हो, आपकी वर्क प्लेस में हो, और जो ग्रीफ और इमोशनल डिस्ट्रेस या रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ हैं उससे कोप करने में आपको इंडिविजुअल काउंसलिंग हेल्प करती है. सो बेसिकली दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग, that what is the complete package which is being provided to the client by the therapist. And now we are going to see that what is the purpose of individual counseling step by step. So the first thing is that to explore the feelings, beliefs or behaviors. So until and unless you are unaware of the fact that what are the beliefs of your client and how he is going to behave in a certain situation, तो आप कभी भी उसको कोई एडवाइस नहीं कर सकते. सो वी हैव टू सी कि क्या उसकी फीलिंग्स हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसके बिहेवियर्स क्या हैं, एंड देन वी मेक अ प्लान टू वर्क थ्रू चैलेंजिंग और इन्फ्लुएंशियल मेमोरीज. हर इंसान की लाइफ में बहुत सारे ऐसे वक्त, ऐसी चीज़ें गुजरी हुई होती हैं जिनका उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है. सो वी हैव टू सी दैम एज वेल कि किस तरीके से हम उनको चैनलाइज कर सकते हैं for changing in his feelings, for change in beliefs or change in behaviors. We have to identify aspects of life that would like to change, because there is not everything in someone's life which you are going to change, but yet there are certain things which need to be focused and where we can work upon. Better understanding themselves and others. Basically जो client है उसको आप इस तरीके से उसकी थॉट्स को चैनलाइज करते हैं कि वो अपने आप को भी समझ सके और वो किसी और को भी समझ सके. समटाइम्स हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें देख के ये रियलाइज़ होता है कि इनको पूरी लाइफ में शायद कभी किसी ने ये नहीं बताया कि उनकी लाइफ में वो क्या कुछ गलत करते रहे, और वो बड़ी अपीयरेंस सी चीज़ें होती हैं लेकिन उनको कभी किसी ने वो चीज़ें हाईलाइट नहीं की होती.
just because they are powerful, just because they have some kind of financial status, maybe they are in some ruling or authoritative condition, तो वो उनको कभी कोई ये नहीं बताता कि आपकी ये चीज़ गलत है, राइट? सो जब हम कभी किसी मौके पर किसी को ये रियलाइज़ कराते हैं कि दिस बिहेवियर इज़ नॉट गोना वर्क और ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो एट टाइम्स जस्ट merely just talking about that simple behavior improves the things, right? Then set personal goals. Personal goals could be something which varies from one person to another. Of course, हर बंदे की एक जैसी थिंकिंग नहीं है, एक जैसे एम्स नहीं है, एक जैसा आप अपनी लाइफ में सोचते नहीं हैं. मे बी आपकी क्लास के 28 लोगों में से कुछ 2 लोग बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हों, और कुछ 2 लोग ऐसे हों जिन्होंने कभी कोई ड्रीम ना देखा हो. वो कहते हों कि जो लाइफ में आएगा हम वट एवर द लाइफ वुड ऑफर देम वी विल एक्सेप्ट देम. और कुछ ऐसे हों जो कि बहुत आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हों. सो आप सबके गोल्स एक जैसे तो नहीं होंगे ना लाइफ के, राइट? सो जैसे जैसे हमारी थिंकिंग्स, बिलीव्स एंड पर्सनालिटीज़ चेंज होती हैं, हमारी लाइफ के गोल्स भी डिफरेंट होते हैं. और जब हमारे पास इंडिविजुअल काउंसलिंग में कोई भी क्लाइंट आता है, तो हमने उसके स्पेसिफिक जो बिलीव्स हैं, उसके स्पेसिफिक जो आइडियाज़ हैं, और उसकी लाइफ में जो उसकी एस्पायरेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको हेल्प करना होता है कि आप अपने लिए रियलिस्टिकली क्या गोल्स जो हैं वो बना सकते हैं, ताकि हम उसको प्रॉपरली उसके लिए काउंसल कर सकें. फॉर इंस्टेंस, लेट मी गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. एज अ करियर काउंसलिंग, अगर किसी के पास एक ऐसा स्टूडेंट आता है जो हमेशा लाइफ में सी ग्रेड्स लेता रहा है, डी ग्रेड्स लेता रहा है, और पहली दफ़ा उसका बी ग्रेड आ गया है, एंड ही इज़ थिंकिंग दैट ही विल गेट एडमिशन ऑन स्कॉलरशिप इन येल यूनिवर्सिटी. सो उसका ये गोल रियलिस्टिक नहीं है, राइट? सो आपने उसको ये बताना है कि विद दीज स्कोर्स आपकी रियलिस्टिक पोजीशन ये है कि आप किसी गवर्नमेंट के अच्छे इंस्टीट्यूट में ट्राई करें, तो मे बी यू विल बी एबल टू गेट एडमिशन बाय चांस. सो ये है किसी की रियलिस्टिक गोल सेटिंग करना. देन वर्क टूवर्ड्स डिज़ायर्ड चेंज. हाँ, बल्कि सेट गोल्स और वर्क टूवर्ड्स डिज़ायर्ड चेंज दोनों में एक चीज़ ये मैं आपको कहूँगी. जैसे हमारे पास अगर अब कोई हैबिट चेंज के लिए कोई आता है, वो कहता है कि जी मैं लेट्स से मैं अपना वेट कंट्रोल करना चाहता हूँ, आई जस्ट वांटेड टू आई एम हैविंग 40 kg एक्स्ट्रा, और मैंने जो है वो अपने इन 40 kgs को शेड ऑफ करना है, और कहता है कि जी मेरे पास टाइम है सिर्फ 2 months. तो आप उसको बताएंगे कि दिस इज़ नॉट अ रियलिस्टिक अप्रोच कि आप 40 kg वेट 2 months में किसी अच्छे हेल्दी तरीके से कम करें. दे मे बी अनहेल्दी वेज, लेकिन हेल्दी वे नहीं होगा. सो वी रिकमेंड यू टू बेसिकली सेट अ रियलिस्टिक गोल, और फिर देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट डिजायर्ड गोल. सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू डू सम प्रैक्टिकल effort for that to achieve that goal. Clear? Okay. Now looking at the role of counselor, we have to see that the counselor is going to talk privately about life issues and problem. Individual counseling is never going to be happen in front of other people, in front of spouse, in front of a mother or a child or any other family member or a friend, but it has to have a private session in which only the therapist and or the counselor and the client will be sitting together talking about the life issues and problems, and they listen carefully to help define goals and support the client. Until and unless आप उसकी सारी बात को सुनते नहीं हैं, आप उसकी सारी बात को समझते नहीं हैं, you cannot define the goals and you cannot help him identifying his priorities and his objectives, और फिर आप उसमें उसको सपोर्ट करते हैं. वर्क टू इंक्रीज सेल्फ इस्टीम. यूजुअली हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत उसी वक्त पड़ रही होती है जब हमारी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थलेसनेस और सेल्फ इस्टीम थोड़े से डाउटेड हुए होते हैं, थोड़े डिजेक्टेड हुए होते हैं. सो आपको काउंसलर हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग योर सेल्फ इस्टीम एंड टू आइडेंटिफाई द कोपिंग स्ट्रैटेजीज विच आर हेल्पफुल फॉर यू टू ओवरकम थ्रू दैट प्रॉब्लम. सो कोपिंग स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हो सकती हैं. दिस इज़ नॉट ओनली अ वन थिंग और अनदर, but they could be different maladaptive coping strategies, they could be different adaptive coping strategies. और उसमें हम फिर देखते हैं कि आपने क्या ह्यूमर को यूज़ करना है, आपने क्या अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजी जो है उसके अंदर आपने कौन सा जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म आपने यूज़ करना है, रैशनलाइजेशन यूज़ करनी है, आपने अपने आप को रिलीजियसली कोप करना है, आपने अपने आप को इस तरह से कोप करना है कि आप प्रॉबेबली उस चीज़ को आप थोड़ा अर्सा के लिए अपनी लाइफ से साइड पे कर दें और आप कुछ और पॉजिटिव चीज़ें करें.
सो हर क्लाइंट के हिसाब से वी हैव टू थिंक अबाउट दैम. Now, when we talk about that, how we look upon counseling in a group therapy and how we look about counseling in an individual session. So, in an individual session, the counseling is a collaborative process. It's a partnership between an individual and a counselor that aims to facilitate change and improve the individual's quality of life. Whereas, while looking into the group therapy or a group counseling, it is a shared therapeutic experience that involves the presence individuals who are working through similar issues, and one or two counselors, they may be involved in their group setting, and it can focus on interpersonal relationship or on particular concerns which are shared by group members. Like एक पूरे ग्रुप के मेंबर्स बैठकर अपनी कुछ जनरल वर्क प्लेस एग्जाइटीज शेयर कर सकते हैं और उनको आप टेक्निक्स और टिप्स बता सकते हैं हाउ टू ओवरकम दैट, हाउ टू डू पॉजिटिव थिंकिंग. इसके ऊपर आपकी एक ग्रुप थेरेपी हो सकती है. अगर खुदा न खास्ता किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का शिकार एक ग्रुप आपके पास आता है, मे बी दे ऑल आर द वन हु हैव सम काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर, और वो इकट्ठे एक जगह पर कहीं पर किसी रिहेबिलिटेशन में हैं. जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जो हेल्थ इश्यूज़ के साथ लोग होते हैं, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिसऑर्डर्स के जो बच्चे होते हैं, थैलेसीमिया हेमोफीलिया के बच्चे होते हैं, इनको आप ग्रुप सेटिंग में भी बता सकते हैं कि आपकी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं और इनके साथ आपको किस तरह से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आपकी लाइफ कैसे जो है वो बेहतर हो सकती है. सो थिंग्स लाइक दैट. सो इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग जो है वो दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी अपनी इंडिविजुअल जो है वो आइडेंटिफिकेशन के साथ यूज़ की जा सकती है. Exclusively looking at individual therapies, there are a lot of individual therapies which are being in practice. And as a student of psychology, you have been talking about these individual counseling techniques at different courses and in different forums. So, since you started reading psychology, आपने तब से CBT के बारे में, साइकोडायनामिक्स के बारे में, सोल्यूशन फोकस, पर्सनल सेंटर्ड, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बहुत सारी इंडिविजुअल काउंसलिंग को बहुत डिटेल में पढ़ा है, और उनमें से एनी वन ऑफ कुड बी अप्लाइड एज एन इंडिविजुअल थेरेपी टू अ क्लाइंट, और उसको आप उसकी प्रॉब्लम के लिए चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी थेरेपी लेनी है. सो सबसे पहले हम CBT की बात कर लेते हैं. रिसेंटली अभी हमने पूरा लेक्चर किया है CBT के ऊपर. So basically, CBT is something in which when negative or unhealthy views or beliefs, जो जिसको हम cognitive distortions कहते हैं, वो हमारी अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हों, तो CBT जो है वो हेल्प करती है टू बिकम टू रिप्लेस दोज नेगेटिव फीलिंग्स विद द पॉजिटिव रिप्लेसमेंट. सो हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल थेरेपी टेक्निक. द अनदर वन इज़ डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी. Patient learns how to better manage stress and emotions in order to improve quality of life. बेसिकली ये भी एक CBT से मिलती जुलती ही टेक्निक है, लेकिन इसमें हम डायलेट करते हैं जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं और हमारा जो स्ट्रेस होता है, और बाय काउंटरिंग दैम हम उसको रिप्लेस करके ही अपने पॉजिटिव बिलीव्स जो हैं और अपनी पॉजिटिव जो थिंकिंग है उसको इन्हांस करते हैं, विच कॉन्सिक्वेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. इंटरपर्सनल थेरेपी में पेशेंट्स लर्न हाउ टू बेटर मैनेज स्ट्रेस एंड इमोशन. आई थिंक ये रेप्लिकेशन हो गई है. इंटरपर्सनल थेरेपी में ये नहीं होता. इंटरपर्सनल थेरेपी जो है वो बेसिकली आपको सिखाती है हाउ टू डील विद अदर पर्सनस एंड हाउ टू डील विद योर सेल्फ इवन समटाइम्स. तो इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल थेरेपीज दोनों यूज़ हो सकती हैं, जिसमें आपको 1-to-1 कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरीके से टेक्निक सिखाई जाती हैं, और वो उसका बेसिक जो कोर होता है, बेसिक जो इशू होता है, वो इस चीज़ पर होता है कि प्रॉब्लम या इशू जिसको हमने रिजॉल्व करना है वो क्या है. क्योंकि इट कुड बी डिफरेंट इश्यूज़, हर एक का अलग अलग इशू हो सकता है, बट हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हाउ टू पीपल कैन कंजीनियली रिजॉल्व दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम. देन साइकोडायनामिक थेरेपी, इसमें आपको पता है साइकोड्रामा है, रोल रिवर्सल है, रोल रिहर्सल है, बहुत सारी इंडिविजुअल टेक्निक्स हैं, लेकिन इसमें हमारी अपने अनकॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करने की, उसकी अवेयरनेस को रेस करने की जो है वो एफर्ट होती है, और बेसिकली वो हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स और बिहेवियर जो कंटिन्यूसली हमें हर्ट कर रहे होते हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए हम साइकोडायनामिक थेरेपी यूज़ करते हैं, ताकि हम उसके अनकॉन्शियस से उस बात को उसके कॉन्शियस में ला सकें. देन सोल्यूशन फोकस थेरेपी, इट्स अ ब्रीफ थेरेपी. इसकी भी हमने पहले बात की है. इट्स अ टाइप ऑफ
talking therapy that is based upon social constructive philosophy. और एट टाइम सोल्यूशन फोकस थेरेपी में सिर्फ चूंकि इट्स अ टॉकिंग थेरेपी, हम एक दूसरे से बात करते करते डिस्कस करते करते वो भी कोर एरियाज़ अपने प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो हमें इसलिए नहीं कभी भी हमारी अवेयरनेस में आते कि उसके ऊपर हमने पहले कभी बात नहीं की होती. सो सिंस वी started talking about them, we give value to them, we think about them, तो हमें उससे खुद भी सेल्फ रियलाइजेशन होती है और उसका सोल्यूशन जो है वो दो लोगों की आपस में कन्वर्सेशन के रिजल्ट में खुद ब खुद सामने आ जाता है. ओके. Solution focused therapy more focuses on what client want to achieve through therapy rather than on problem that made them seek help. This approach does not focus on past but focus on the present and future. We have already talked about them कि solution focus जो होती है वो at the present हमारा जो problem होता है या हमें लगता है कि we foresee a problem in future, तो ये सिर्फ उसको सॉल्व करने के लिए होता है, जबकि आपको पता है कि साइकोडायनामिक थेरेपी जो है वो हमारे पास्ट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए भी यूज़ हो रही होती है. पर्सनल सेंटर्ड थेरेपी इज़ बेसिकली थेरेपी जिसमें हमें पता है कि हम एक इंडिविजुअल की सेल्फ को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. वी टॉक अबाउट गिविंग एन इंडिविजुअल अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पथी एंड कॉन्ग्रेंस, और वो ख़ुद अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई करता है और अपनी जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है. और अनलाइक बिहेवियर थेरेपी, इन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी द थेरेपी इज़ मोर फोकस्ड टुवर्ड्स सब्जेक्ट, और जो थेरेपिस्ट है वो एक साइड पे रहकर, एक बैक पे रहकर काम कर रहा होता है और उसका मकसद सिर्फ, थेरेपिस्ट का मकसद सिर्फ क्लाइंट को हेल्प करना होता है कि वो किस तरीके से अपनी सिचुएशन से खुद बाहर निकल सकता है, बाय एक्सप्लोरिंग हिज ओन self and by exploring his own problems. Reality therapy is a relatively new form of therapy in the world of counseling. Or relative therapy is an approach of teaching and emphasizing problem solving, personal responsibility and need to address or eliminate the need of reality of an individual. So reality individual therapy को basically इस तरह से डील करती है कि उसमें आपको कोई भी आपका जो प्रॉब्लम है, जो भी क्लाइंट लेकर आ रहा है, उसको पहले उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. फॉर इंस्टेंस, इफ समवन हैज़ केम टू यू दैट ही इज़ स्ट्रगलिंग थ्रू सेल्फ हेट्रेड, उसको अपना आप पसंद नहीं है, ही इज़ नॉट एबल इनफ टू appreciate himself or anything whatever he is doing. So what you have to do, you have to give him a complete understanding of what is self-hatred, how does self-hatred develops, what could be the possible consequences of having self-hatred, how can you deal self-hatred by yourself, and what kind of help you can receive from other person to give support in self-hatred conditions. So जब आप उसको ये सारी अवेयरनेस देते हैं तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम उसका वैसे ही सॉल्व हो जाता है. अभी येस्टरडे मेरी एक क्लाइंट थी जिसके साथ मैं बात करी थी, उसकी लाइफ के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे दे वर रिलेटेड टू फोर्स मैरिज. शी वॉज़ अ हाईली अचीवेबल पर्सन, और मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकती बिकॉज इतना पता लग जाता है, बट शी बिलोंग्स टू अ हेल्थ केयर प्रोफेशन और एक बहुत टॉप नॉच पोजीशन पर वो काम कर रही थी. बट बिकॉज शी वॉज इंगेज्ड इन टू अ फोर्स मैरिज, दैट इज़ बरादरी सिस्टम टाइप थिंग, सो शी वॉज हैविंग काइंड ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, आइसोलेशन, डिप्रेशन, और फिर उसको जो है वो अपनी फोर्स मैरिज की वजह से एक ट्रस्ट इश्यूज़ भी थे और इस तरह की चीज़ें थी. सो ऑल्दो शी हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन हर लाइफ, बट वो कंटेंटमेंट उसके अंदर नहीं थी. उसको बहुत ज़्यादा रेसिंग थाट्स थी, प्रॉब्लम्स थे, विड्रॉल की फीलिंग्स थी, और इस तरह से कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो वो चीज़ उसको उसकी प्रोफेशनल लाइफ से भी बाहर नहीं निकलने दे रही थी. तो जब मैंने उसको ये सारी बातें उसकी सुनी, एंड मैंने उसको बेसिकली कल रियलिटी थेरेपी दी. उसको मैंने बताया कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, व्हाई डिड यू डेवलप दिस फीलिंग्स, और ये कैसे तुम्हारी स्टार्ट हुई, क्योंकि उसकी सारी हिस्ट्री पहले मैंने सुनी, और उसे मैंने बताया कि तुम लाइफ में किन किन जगहों पर तुम गलत हो, राइट, तुम्हारी कहाँ कहाँ थिंकिंग गलत है. तो बिकॉज शी वॉज एन एजुकेटेड इंडिविजुअल, तो जब मैंने उसको रियलाइज़ कराया कि तुम्हारी ये बातें ठीक हैं, तुम्हारा ये सेल्फ ब्लेमिंग का बिहेवियर ठीक नहीं है, तुम्हारा सेल्फ पिटी का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो उसे खुद ही आधी से ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ हो गई कि आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ, राइट. So at times these therapies in different situations and appropriately used are very very helpful. Then we see on how much effective are the individual therapy. Research shows that therapy may result in fewer relapses of common conditions including moderate depression and anxiety,
Furthermore, it indicates that the positive effect of good therapy extend beyond treatment. Of course ये हमें पता है कि अगर आप एक अच्छा थेरेप्यूटिक सेशन लेते हैं तो सिर्फ मेडिसिन लेने से ज़्यादा उसकी इफ़ेक्टिवनेस होती है. Many people report improved condition long after therapy has ended. Therapy is often more effective than psychotropic medication or medical treatment alone. When used on their own, those treatments may cause harmful side effects. Many therapeutic approaches are also evidence based. This means that they have been subjected to research studies and clinical observations to test their effectiveness. बहुत सारी रिसर्चेज होती है साइकोलॉजी में जो क्लिनिकल ट्रायल्स को देख रही होती हैं, जो ये देख रही होती हैं कि अगर आप सिर्फ वो जैसे आप रेंडमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल्स देखते हैं, फिर आप ए बी सी डी मॉडल देखते हैं, ए बी मॉडल देखते हैं, उसमें यही होता है कि क्लाइंट्स जो हैं वो डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस को एक्सपोज किए जाते हैं. कहीं पर जैसे जो डिप्रेशन के क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर बहुत रिसर्चेज देखी हैं कि अलोन उनको जो है वो मेडिकेशन दी जा रही है. फिर एक ग्रुप है जिसको मेडिकेशन के साथ जो है वो कुछ रिलीजियस थेरेपी दी जा रही है, जैसे वो मेडिकेशन भी ले रहे हैं और सूर्य रहमान भी सुन रहे हैं. फिर एक और ग्रुप है जो कि मेडिकेशन ले रहा है और साथ उनको जो है वो सीबीटी भी दी जा रही है. तो फिर तीनों ग्रुप्स की इफेक्टिवनेस को ओवर द टाइम पीरियड जो है वो जज किया जाता है और देखा जाता है कि कौन से क्लाइंट्स जो हैं वो बेहतर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक हो गया. सो दीज आर द थिंग्स. देन लुकिंग एट द एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग. इंडिविजुअल काउंसलिंग इज समथिंग विच गारंटीज यू कॉन्फिडेंशियलिटी. लाइक मैंने जैसे अभी आपसे बात की कि समवन इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि आप सब लोगों को जाकर आपके बारे में पता चले, आप ओपनली जाकर अपना जो है वो ट्रीटमेंट किसी क्लिनिक पे बैठकर करवा रहे हैं, तो आप इसे कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ जो है वो इंडिविजुअल काउंसलिंग में जा सकते हैं. फ्लेक्सिबल होती है आपके टाइमिंग्स और आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, एंड इट इंश्योर्स फोकस्ड अटेंशन ऑफ अ काउंसलर. 1-to-1 है तो ऑफ कोर्स इसमें आपको ज़्यादा अटेंशन मिलती है, and it allow clients to be very comfortable, और at times just talking to a person who is very neutral बहुत आसान हो जाता है आपके लिए अपनी बात को एक्सप्लेन करना और अपनी जो लाइफ में आपकी अपनी जो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके अंदर कोई चीज़ कम है, आप उसको अपनी उन शॉर्ट कमिंग्स को जो है वो आप फोकस कर सकते हैं. There is high risk of getting too personal or emotionally involved in individual counseling. I have seen some movies, जैसे मैं एग्जांपल भी आपको पहले दी थी, जो एक वो थेरेपिस्ट की हमने मूवी डिस्कस की है कई दफ़ा क्लास में, जो शाहरुख खान की डियर जिंदगी. तो उसमें एट टाइम्स देयर आर द सिचुएशन लाइक द क्लाइंट वाज टू मच इन्वॉल्व टुवर्ड द थेरेपिस्ट. उसमें हमने उस मूवी में हमने यही चीज़ देखी थी, और भी ऐसी कई हमने मूवीज़ देखी हैं जिसमें हम देखते हैं बिकॉज उसकी रीज़न क्या होती है, मैं आपसे भी पूछती हूँ उसकी रीज़न क्या होती है, ये आप सोचें उतनी देर. Then the results are too focused on one person only, like हम इतना time invest कर रहे हैं but the person is the only one client, and the counselor may have limited knowledge about the specific problem which the client is coming with. हो सकता है कि आपकी एक्सपर्टीज उस प्रॉब्लम के ऊपर ना हो बल्कि किसी और प्रॉब्लम पर हो, लेकिन आपका जो क्लाइंट है वो उस प्रॉब्लम के साथ आ रहा हो. So these could be the disadvantages or advantages of individual therapy. So briefly wrapping up, we talked about the definition of individual therapy. Then we see that in which scenarios and situations individual therapy could be given, and then we have focused at what are the types of different individual counselings, and then we looked at the role of counselor and its advantages and its disadvantages. Now I would like to ask you that what are the scenarios in which there is a high risk of getting too personal and emotionally involved by the client. So you have to give me answer for that. Would anyone would like to reply? Any example? एक तो ट्रांसपेरेंस हो जाती है क्लाइंट्स में, Right. और उसके अलावा क्योंकि वो सिर्फ थेरेपिस्ट ही उसकी हेल्प कर रहा होता है, उसके इमोशंस को समझ रहा होता है, तो इसीलिए चांसेस होते हैं इमोशनल अटैचमेंट. Right. Anyone else? Anyone would like to share any movie or any drama जो उसने देखा हो related to such situation? No idea so far.
चलें, it's all right. So what we are going to do is basically the remaining time minutes are only 6 minutes. So अब हम इस कॉल को हम एंड करते हैं और आप इसी लिंक को दोबारा क्लिक करके इस मीटिंग को ज्वाइन करें ताकि हम अपना जो सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर है जो कंडीशनिंग क्लासिकल एंड ऑफरेंट कंडीशनिंग टेक्निक्स हैं हम वो कवर करें. ठीक है. सो विद दिस वी